حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کا بیٹا، ان کا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹا یزید اپنے خاندان کے صالح اور نیک لوگوں میں سے ہے، اور اے لوگو تم اپنی جگہ بیٹھے رہنا اور اس کی بیعت کرنا۔ تقریباً 300 صحابہ ساتھ میں تھے اس لڑائی کے اندر۔ یہ سب کون تھے؟ آپ ان یہودی نما مسلمان کے نام پر یہودیوں کی ان ٹولیوں کو، ان رافضیوں کو، یا آپ ان کے کہے میں آ کر کے اس طرح کے صحابہ کو آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے گھوڑے کے، یزید ابن معاویہ کی جو میدان جہاد میں ان کے گھوڑے کے جو دھول تھے، یا ان کے گھوڑے کے متھنے میں جو دھول جاتے تھے، یہ اس غبار کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ابو الجیشن بن امتی کی روایت کا مصداق سارے محدثین نے یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ کو نہیں ٹھہرایا؟ اور یہی عبداللہ ابن عباس ہیں، گھوڑے کی ان کی نکیل پکڑ کر کے، ان کی باغ ڈور پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں رک جاؤ مت جاؤ، ان کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا۔ یہ جس طرح تمہارے باپ کو انہوں نے مارا ہے، ایسے تمہیں بھی شہید کر دیں گے، یہ مت جاؤ، مجھے خطرہ ہے۔ اگر اللہ کی قسم، اگر تمہارے گھوڑے کے نیچے لیٹنے کے وجہ سے اگر تم رک سکتے تو میں تمہارے گھوڑے کے نیچے لیٹ جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستوں اور بھائیوں اور ہماری اسلامی ماں اور بہن، میں موقع کی مناسبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے امیر یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کچھ مبنی پر حقائق باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، ان کا مقام، ان کا رتبہ اپنی جگہ، اور ان سے محبت، اہل بیت سے محبت اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں، عین ایمان ہے۔ اور اگر اس میں کسی کے دل میں ذرا بھی کوئی نقص ہے، کمی ہے، تو یقیناً اس کے ایمان میں کمی ہے۔ کسی کے بارے میں اگر ادنا سی بھی گستاخی کا وہ تصور کرتا ہے تو وہ دائرۂ اسلام سے بھی خارج ہے۔ ان تمام سب فضائل، مناقب اور تمام سب رتبے اور مقام اور اہمیتوں کے باوجود بھی اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، کیونکہ یہی تقویٰ ہے اور یہی پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امیر یزید، امیر المسلمین، امیر المومنین یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ کے تعلق سے بہت ساری افواہیں، بہت ساری غلط باتیں دشمنان اسلام نے، اس امت کے مسلمان نما یہودیوں نے بہت ساری غلط فہمیاں امت کے اندر پیدا کی۔ بدقسمتی سے اہل السنہ والجماعہ والحدیث کی تاریخ اور حدیث کی روایات میں ہمیشہ سے روافض کا عمل دخل ہے، جسے ہم اہل تشیع بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ میں بعض ایسے واقعات تک مل جاتے ہیں جن سے جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص اور ان کی بے حرمتی کے پہلو بھی نکلتے رہتے ہیں۔ اور آج تک روافض کا یہی شیوا رہا ہے کہ وہ دین اسلام کو ٹارگٹ کر کے صحابہ کرام کی شان میں، ان کی عظمتوں میں تنقیص پیدا کر کے اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر پھیلے ہوئے اسلام دشمن عناصر کو پروموٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے مواد انہیں فراہم کرتے ہیں
जिनका न कोई सर होता है न कोई पैर होता है, झूठी रिवायात, खुराफात, ये तमाम सब चीजें उनकी बातों का शरबा होता है। यही वजह है कि हमारी तारीख में बिलउमूम खुलफाए बनु उमय्या और बिलखुसूस यजीद इब्न मुआविया रहमहुल्लाह को नहायत मतऊन किया गया। और ये अब चूंकि मुहर्रमुल हराम का महीना करीब आने वाला है, सर पे है ज़िलहिज्जा के बाद, इसलिए फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया के जरिए से बहुत ज़्यादा तूफान बदतमीजी बपा है और बहुत ज़्यादा यूं समझिए बदजुबानियाँ और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हर्जा सरानियाँ की जा रही। ऐसे मौके पर मैंने मुनासिब समझा कि इस हकीकत से पर्दा उठाया जाए और इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल के इस फरीज़े को अंजाम दिया जाए, इसके लिए चाहे कुछ भी हो। रवाफिज़ के अक़ीदे तक़िया यानी ज़ुबान पे कुछ हो दिल में कुछ हो, इसको कहते हैं तक़ियाबाज़ी। इसकी बदौलत अहले सुन्नत के चंद जलीलुल क़द्र उलमा भी इस प्रोपेगेंडे के लपेट में आ गए और कुछ तरसील के ज़राए और कुछ इबलाग़ के वसाइल की कमी की वजह से। बहरहाल कभी ये कहा जाता है कि इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने यज़ीद इब्न मुआविया को फातिक़ व फाजिर बताया, तो कभी किसी और आलिम का नाम लिया जाता है। हालांकि अदल और इंसाफ का तकाजा तो ये था कि किसी साहब के किरदार के बारे में बाद के लोगों से ज़्यादा उसके हम असरों का बयान काबिल हुज्जत होता है। लेकिन न जाने क्यों यज़ीद इब्न मुआविया रहमहुल्लाह एक ऐसा शख्स, उनके मामले में ये सारे मुत्तफ़क़ा कुल्लियात कहाँ रिपोर्ट हो जाते हैं, अल्लाह बेहतर है। वहाँ सारी अक़लें मातम कर गुनाह हो जाती। और अगर आलिम का खेल खेलना है तो फिर हमारे पास भी अहलुस सुन्नह वल जमाअह के पास भी जलीलुल क़द्र उलमा चोटी के उलमा हैं। इमाम गज़ाली हैं, इमाम अबू बकर हैं, इमाम इब्न अल-अरबी मालिकी रहमहुल्लाह, इमाम अब्दुल मुग़ीस हम्बली जैसे अइम्मा रहमहुल्लाह मौजूद हैं जो कि यज़ीद की मनक़बत के कायल हैं, उनके मदहो सताइश के कायल हैं। बाकी यज़ीद के फासिक और यज़ीद के जालिम होने से मुताल्लिक़ जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं उनका जवाब किसी और को क्या देना है। खुद हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बिरादर कबीर, खुद उनके भाई हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रहमहुल्लाह दे चुके, जबकि उनसे वाक़े हर्रा के मौके पर, जो कि वाक़े करबला के बाद पेश आया था, अब्दुल्लाह इब्न मुती ने यज़ीद इब्न मुआविया पर फिस्क़ व फुजूर का इल्ज़ाम लगाकर बैत तोड़ने पर जब उनसे इसरार किया तो मोहम्मद बिन अली यानी मोहम्मद बिन हनफिया रहमहुल्लाह ने उनको जवाब दिया। और बड़ा वो जवाब जो था वो सुनहरी हरफों से लिखे जाने के काबिल है। उन्होंने कहा कि मैं यज़ीद के पास गया हूं, उसके पास रहा हूं, मैंने तो उसको सलाह का पाबंद पाया, कार खैर में सरगर्म पाया, फ़िक़्ह पर गुफ्तगू करते हुए पाबंद सुन्नत मैंने उसको पाया। इमाम इब्न कसीर, हाफ़िज़ इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में इस वाक़े का जिक्र फरमाया है। और ये बयान हुसैन इब्न अली के सगे भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे भाई मोहम्मद बिन हनफिया जी मोहम्मद बिन अली रहमहुल्लाह जब वाक़े करबला के 3 साल के बाद दे रहे। इंसाफ पसंदों के लिए तो यही एक बयान यज़ीद के फिस्क़ व फुजूर की दास्तानों के गलत होने के लिए काफ़ी होना चाहिए था। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारे इन यज़ीद मुखालिफ दोस्तों की नज़रों से सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर की वो हदीस ओझल हो जाती है जिसमें मच्छर के मारने के कफ़ारे के जवाब में यज़ीद के बजाय अहले कूफा को कातिलान हुसैन करार देते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर। और फिर यही नहीं बल्कि यही इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के साहबजादे अदल इंसाफ के पैकर हैं। हर्रा के मौके पर इसी यज़ीद की बैत पर न सिर्फ मजबूती से डट जाते हैं बल्कि बैत तोड़ने वाले पर पूरे खानदान को आले उमर से ताल्लुकी की धमकी भी दे डालते हैं। अगर यज़ीद वाकई जालिम होता, फासिक व फाजिर, शराबी कबाबी, जैसा कि हमारे पास कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भी तक़ियाबाज़ों के चक्करों में आकर अपनी ज़ुबानों को, अपने ईमान गंदा करते हैं, अपने ईमान को बहरहाल
बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत फरमाए। उन्हें समझना चाहिए। और ये भी अजीब तुरफा तमाशा है कि हमारे अहबाब और दोस्त बुखारी और मुस्लिम की रिवायात को असहुल किताब बादा किताबिल्लाह कहते हैं, यानी कुरान के बाद सबसे सही किताब है, सही बुखारी है, मानते हैं। लेकिन यजीद इब्न मुआविया की मनक़बत में इन किताबों में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी वारिद हुआ है, उससे वो बगलें झाँकते हुए नजर आते हैं, पहलू दही कर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अबुल जैश बिन उम्मती की रिवायत का मिस्दाक़ सारे मुहद्दिसीन ने यजीद इब्न मुआविया रहमहुल्लाह को नहीं ठहराया? आखिर एक जालिम आदमी को नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसाने मुबारक से जन्नत की बिशारत कैसे मिल सकती थी? फिर ये भी छोड़िए, क्या हमारे असहाब की नजरों से सही बुखारी और सही मुस्लिम सहीहैन की 12 खुलफा वाली वो रिवायात नहीं गुजरी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम तरक्की करेगा, महफूज और मामून रहेगा जब तक कि कुरैश में से एक बाद दीगरे 12 खुलफा नहीं गुजर जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ खुद यजीद इब्न मुआविया को जायद खलीफा जिसके दौर में इस्लाम मामूल रहेगा उसे करार दे रहे हैं, और हमारे अहबाब यजीद को जालिम, फासिक, वाजिब, चोर, बदमाश, डाकू, कातिल करार देने में लगे रहते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत का फरमाए। इसके बाद मुनासिब मालूम होता है कि सैयदना हुसैन बिन अली के सगे भाई की तरह उनके चचा और नाना की कुछ रायें भी यजीद इब्न मुआविया की मनक़बत में पेश कर दी जाएं ताकि और दिल को तसल्ली हो जाए। लेकिन काश लोग इस बात को समझते और अपने ईमान को बर्बाद न करते, क्योंकि किसी मोमिन को काफिर कहना पता है आपको कितना बड़ा जुर्म है ये। और आप तो खाकम बदहन अपनी जुबानों से न जाने पूरी तकरीरें आप हज़रात की काफिर होती। अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए। अल्लामा इब्न हज़्म अल-अंदलुसी रहमहुल्लाह अपनी किताब जमरतुल अंसाब सफ़ा नंबर 64 में यजीद को अमीरुल मोमिनीन लिखते हुए फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं यजीद इब्न मुआविया, अमीरुल मोमिनीन। कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब ये सहाबी हैं, आप दिमश्क मुंतकिल हो गए। कौन? अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया ये दिमश्क मुंतकिल हो गए। दिमश्क आपको पता है कहाँ? मुल्क शाम में, इस वक्त सूरिया में, और आपका मकान भी वहीं था। चुनांचे जब आपका इंतकाल होने लगा तो यजीद इब्न मुआविया को जो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे अपना वसी और वारिस बना के गए और उन्होंने आपकी वसीयत को कबूल भी कर लिया। अल्लाह, ये कौन है? ये अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब सहाबी रसूल हैं। ये यजीद इब्न मुआविया को अपना वसी और वारिस बना रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप फैसला कीजिए, आप खुद देख लीजिए कि हुसैन इब्न अली के चचा, हजरत हुसैन के चचा हैं ये अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया बिन हारिस, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं, सहाबी रसूल हैं, सहाबी के बेटे हैं। वो एक जालिम और फासिक और फाजिर को, कातिल को अपना वसी बना रहे हैं। है ना ये ताज्जुब की बात? और आप हजरात 1500 बरस बाद बैठ करके यहाँ खूब मुर्ग और मुसल्लम दबाकर मुहर्रम के ढोल और ताशे पर और मातम और 10 मुहर्रम तक जो गले फाड़ फाड़ कर गालियां बकते हैं, शर्म तुमको मगर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर। और ऐसे ही कुछ नजरियात सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना आजी, सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी ही नाना नहीं थे, और भी नाना थे। रिश्तों में नाने भी होते हैं। आपके नाना सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा तो वो भी नाना हुए, पर नाना हुए इस तरह। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तो बहरहाल चचेरे भाई हैं, तो नाना तो हुए वो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी नाना हुए, लेकिन पर नाना। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये भाई हैं चचेरे, तो ये तो नाना हुए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जिसकी तसरीह लाज़री ने अंसाबुल अशराफ में की है कि जब मक्का में दमश्क से सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनकी वफात की खबर आई तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मग़फ़िरत की दुआ करने के बाद यजीद के बारे में नेक ख्यालात का इजहार फरमाते हुए क्या कहते हैं पता है? उसे नोट किया है अंसाबुल अशराफ में लाज़री ने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उनका बेटा, इनका मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का बेटा
یزید اپنے خاندان کے صالح اور نیک لوگوں میں سے ہے، اور اے لوگو تم اپنی جگہ بیٹھے رہنا اور اس کی بیعت کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں۔ اور یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے آپ کو، یہی عبداللہ ابن عباس ہیں۔ آج 8 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، لوگ حج کے لیے یوم الترویہ ہے میدان مینا میں جا رہے ہیں۔ آج اس زمانے میں بھی، اس وقت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 12,000 یا کتنے ہزار خطوط دے کر کوفیوں نے بلایا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے یوم الترویہ کو نکل رہے ہیں۔ دنیا حج کرنے کے لیے مینا جا رہی ہے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے کچھ اعزاء اور اقارب اور بچوں کو لے کر کے 70 یا کسی مختلف روایات میں وہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہی عبداللہ ابن عباس ہیں، گھوڑے کی ان کی نکیل پکڑ کر کے، ان کی باغ ڈور پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں رک جاؤ مت جاؤ، ان کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا۔ یہ جس طرح تمہارے باپ کو انہوں نے مارا ہے، ایسے تمہیں بھی شہید کر دیں گے، یہ مت جاؤ، مجھے خطرہ ہے۔ اگر اللہ کی قسم، اگر تمہارے گھوڑے کے نیچے لیٹنے کے وجہ سے اگر تم رک سکتے تو میں تمہارے گھوڑے کے نیچے لیٹ جاتا۔ لیکن ہزار منع کرنے کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کا صبر کیا۔ وہ ان کی مصلحت تھی، اور کیا اسباب تھے وہ بہتر جانتے تھے۔ بہرحال حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے نانا لوگوں کو بیعت کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ پھر ہمیں اس بات پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے احباب اجماع صحابہ کو حجت مانتے ہیں، لیکن جب یہی اجماع صحابہ یزید ابن معاویہ کی بیعت سے متعلق ہوتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، اس کی نفی کر کے سیدنا حسین بن علی اور سیدنا عبداللہ بن زبیر کے تفرد کو اختیار کرتے ہیں، جبکہ سیدنا حسین بن علی تو بعد میں اپنے موقف سے رجوع کر کے یزید کی بیعت کو بھی تیار ہوئے تھے۔ جی آپ کو پتہ ہے، کربلا کے میدان میں جب دیکھا کہ حالات دیگرگوں ہو چکے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اسلام اور کفر کی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے۔ یہ جو باولے ہمارے بکتے ہیں ہمارے ملکوں کے، یہ باولے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت حسین کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی چھوٹے موٹے بچے تھے؟ ایک کم 60 سال کی عمر تھی ان کی، پختگی 60 برس پختہ ہو جاتا، 40 برس میں آدمی کی عقل پختہ ہو جاتا، اور یہ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کوئی شہزادے، نعوذ باللہ، لفظ شہزادہ کہنا یہ توہین ہے، گستاخی ہے حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہما کی شان۔ لیکن اللہ ان احمقوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اس طرح کے الفاظ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا کہ یہاں تو حالات دیگرگوں ہیں اور سوائی گروپ بیٹھا ہوا ہے، جس طرح ہمارے باپ کو جنہوں نے شہید کیا ایسے یہ سوائی گروپ یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں حضرت یزید ابن معاویہ تھوڑی تھے۔ یزید ابن معاویہ ملک شام میں ایک مہینے کی مسافت دوری جہاں پر حضرت حسین ہے اور جہاں ملک شام ہے، اتنی دوریوں پر وہاں بیٹھے ہوئے، یہاں تو آپ پڑوس میں قتل ہو جائے تو کسی کو پتہ نہ چلتا، اس کا ثبوت جمع کرنے میں دانتوں سے پسینے آتے کہ جائے کہ اس زمانے میں جبکہ اتنا لمبا چوڑا معاملہ تھا، کہاں سے اس کے بارے میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ جناب علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہاں معاملہ الٹا ہے، یہ تو ہمارے خون کے پیاسے، انہوں نے کہا 3 باتیں ہیں، یا تو ہمیں کسی سرحد پر بھیج دو کہ ہم مسلمانوں کی سرحد پر جا کے اسلام اور کفر کی لڑائی لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، یا مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا مجھے کوفہ جانے دو، یا مجھے کوفہ سے ملک شام کی طرف جانے دو، میں یزید ابن معاویہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لوں گا۔ اللہ، کھلی تحریر ہے بدایہ اور نہایہ کی، حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ میں لکھا، کھلی کتاب ہے اجماع صحابہ کے حجت کا۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ حضرت حسین بن علی کہ حضرت یزید کے ہاتھوں میں بیعت کر لی جائے، اور اس حجت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یزید ابن معاویہ کو جائز خلیفہ مانا جاتا، لیکن برا ہو رافضیت اور شیعیت کا کہ ان کے جراثیم کا اچھوں کے دماغوں پر اثر ہوا، اور سب کی دماغی صلاحیتیں جو ہیں ختم ہو گئی جب اہل بیت کے نام پر سلب کر لی گئی ہیں محبت اہل بیت کے نام۔ عزیزان گرامی،
बात कड़वी है लेकिन इसे हजम कीजिए, यही सदा मबनी बर सदाकत है। इन कज़्ज़ाब सवाई गिरोहों की पैदावार, यहूदियों की जायज औलाद, ये आपको सही नहीं बताएंगे। इन्होंने तो हमेशा से पीठ के अंदर छुरे घोंपे और अल्लाह ने इनको सजाएं भी दी हैं। अल्लाह ताला आज तक ये सजा में जो है क्या कहते हैं मुलव्विस, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अपने सीनों को, अपने पुश्तों को, अपने आल औलाद के सरों को छुरी कांटों से आज तक मार रहे हैं। ये भी अल्लाह की गिरफ्त है, ये अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत फरमाए। मैं मुनासिब समझता हूँ, मुख्तसर ये कि मुनासिब समझता हूँ कि 250 सहाबा, जनाब अली सहाबा असहाबी कुल्लुहुम उदूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सहाबा सबके सब आदिल हैं, सरापा आदिल हैं। 250 सहाबा में से यहाँ जिन्होंने हजरत यजीद इब्न मुआविया के हाथों पे बैयत की थी जनाब अली, और फौज में थे 300 सहाबा जो तकरीबन दुनिया की लड़ाई में थे, और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जो मेजबान अव्वल थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब शिद्दत बुखार से उन्होंने महसूस किया शायद मेरी वफात यहाँ हो जाए, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जैसी शख्सियत, जी जनाब अली, उन्होंने हजरत अमीर मुआविया के साहबजादे यजीद इब्न मुआविया रहमहुल्लाह पर के हाथों पर बैयत की थी, और कुस्तुनिया की लड़ाई में थे, और उस वक्त यजीद इब्न मुआविया उस लड़ाई के कमांडर थे, अमीर थे, उनके हाथों बैयत की थी। जब उन्होंने समझा कि अब मैं इंतकाल कर जाऊंगा तो उन्होंने वसीयत की कि मेरी नमाज जनाजा कोई और नहीं पढ़ाएगा, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो पढ़ाएंगे तो यजीद इब्न मुआविया जो अमीरुल मोमिनीन है वो पढ़ाएंगे। तकरीबन 300 सहाबा साथ में थे उस लड़ाई के अंदर। ये सब कौन थे? आप इन यहूदी नुमा मुसलमान के नाम पर यहूदियों की इन टोलियों को, इन राफजियों को, या आप इनके कहे में आकर के इस तरह के सहाबा को आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप इन्हें काफिर साबित करना चाहते हैं? आप इन्हें अपने से आप इन्हें बेवकूफ समझना साबित करना चाह रहे हैं? आप बहुत बड़े अक्लमंद और ईमान वाले हो गए, बहुत ज्यादा आप आले बैत से मोहब्बत करने वाले, और ये सहाबा जिन्होंने हज़रत यजीद इब्न मुआविया के हाथों बैत की थी ये उनसे मोहब्बत करने वाले नहीं थे। आइए मैं आपको कुछ नाम और बताता हूँ जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया के हाथों पर बैत की थी। पूरे नाम तो मैं नहीं गिनवा सकता लेकिन मशहूर नामों को मैं बता सकता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अनस इब्न मालिक, काब इब्न उमर, सुहैब इब्न सना, हजरत सैयदना अबू हुरैरा, नुअमान इब्न बशीर, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस, औफ बिन मालिक, अबू उमामा बाहली, दहाक इब्न कैस, अम्र इब्न उमैया, उक़बा बिन नाफ़िअ, उक़बा बिन आमिर, मिक़दाम बिन मादी कर्ब, साबित इब्न दहाक, उमर बिन अबू सलमा, अब्दुल्लाह बिन जाफर वगैरहुम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। ये असहाब थे, और इनमें से वो असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वाक़ई करबला के बाद तक जिंदा रहे, वो वाक़ई करबला के बाद भी यजीद इब्न मुआविया की बैयत को उन्होंने नहीं तोड़ा बल्कि उसके ऊपर मजबूती के साथ डटे रहे, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि यजीद पर कत्ल हुसैन का इल्जाम सरासर बुहतान है, झूठ है, फरेब है, मक्र है। यजीद इब्न मुआविया रज़ियल्लाहु रहमहुल्लाह ने हरगिज हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून नहीं किया है, झूठा इल्जाम। तुर्रे हैरत का मकाम यह है कि सहाबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि सैयदना हुसैन इब्न अली के सगे चचाजाद भाई हैं और आपके बहनोई भी हैं। जनाब अली, रिश्तों को समझिए जरा, आप जरा रिश्तों को समझिए। सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि सैयदना हुसैन इब्न अली के सगे चचाजाद भाई, और आपके बहनोई यानी सैयदा ज़ैनब बिन्त अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर थे। उन्होंने कलेजे पे हाथ रख के मेरी बात सुनिए जरा, कलेजे पे हाथ, दिल पे हाथ रख के ये मैं तारीखी हकीकत आपकी खिदमत में डिलीवर कर रहा हूं, बता रहा हूं। उन्होंने अपनी बेटी उम्मे मोहम्मद को बकौल जालिमों के इन बेगैरतों के, जो आज यजीद को काफिर और यजीद को शराबी कबाबी फासिक फाजिल कहते हैं, उन्होंने अपनी बेटी उम्मे मोहम्मद को इसी जालिम बकौल इनके फासिक फाजिर कातिल शराबी शख्स यजीद इब्न मुआविया को ब्याह दिया हो, शादी करके दी। मैं पूछना चाहता हूं, आप इस दौर में इतने गिरे पड़े उनके मुकाबले में इंतहाई खसीस
मकाम पे हैं, आपका कोई रुतबा व मकाम नहीं। वो सहाबी थे, वो आले बैत हैं, आले रसूल हैं। अपने दिलों पर हाथ रख करके सोचें कि क्या कभी उनके हाथों में हमेशा हथियार हुआ करते थे, आपकी तरह नहीं कि छुरी भी नहीं आपकी जेबों में। वो अपनी बेटियों को एक जालिम, जाबिर, फाजिर, फाजिर, कातिल शख्स को बहालत जबर भी ब्याह करने पर तैयार होंगे? सोच सकते हैं? आप नहीं हो सकते इस गए गुजरे दौर में, तो वो कैसे हो सकते थे? और अगर वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते तो फिर सहाबी रसूल जो चचेरे बहनोई हुसैन बिन अली के बारे में ऐसा कैसे सोचा? जब आप नहीं सोच सकते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अम्मजाद और बहनोई हैं हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, उनके बारे में वो ऐसा कैसे सोचा जा सकता है? मुख्तसर ये कि यजीद बिन मुआविया की मनक़बत में यहाँ दलाइल का अंबार लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम बात लंबी ना हो इस डर से कि इतने ही दलाइल पर इत्तिफा करते हैं और अपनी बात को इमाम गज़ाली के इन अल्फाज पर ख़त्म करते हैं कि वो कहते हैं कि यजीद इब्न मुआविया सहीहुल इस्लाम है और ये सही नहीं है कि उन्होंने हुसैन बिन अली को कत्ल कराया या उनके कत्ल का हुक्म दिया या उस पर रजामंदी जाहिर की। बस जब ये कत्ल उस तक पाए सबूत को नहीं पहुंचता तो फिर ये जायज़ नहीं कि उनके बारे में ऐसा गुमान रखा जाए, क्योंकि किसी मुसलमान के बारे में बदगुमानी रखना भी हराम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि इन्न बअद ज़न्नि इस्मुन, बहुत ज़्यादा गुमान से बचो, क्योंकि बहुत सारे गुमान जो है, बाज़ गुमान जो है वो गुनाह होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का खून, उसका माल, उसकी इज्जत व आबरू और उसके बारे में बदगुमानी रखने को अल्लाह ने हराम करार दिया है। और जो शख्स ये ख्याल रखता है कि यजीद इब्न मुआविया रहमहुल्लाह ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का हुक्म दिया या उस पर वो राजी हुए, तो जान ले कि वो परले दर्जे का अहमक, बेगैरत, बेहया इंसान है, मक्कार है, कज़्ज़ाब है, झूठा है। क्योंकि अकाबिर, उज़रा और सलातीन में से जो लोग भी अपने ज़माने में कत्ल हुए, अगर उनके बारे में वो ये हकीकत जानना चाहे कि किसने उनके कत्ल का हुक्म दिया, कौन उस पर राजी हुआ और किसने उसे नापसंद किया, तो वो शख्स उस पर हर्गिज़ कादिर ना होगा, अगरचे वो कत्ल के उस जमाने में, उसके पड़ोस में और उसकी मौजूदगी में हुआ, तो कोई पता नहीं लगा सकता। तो फिर इस वाक़े की हकीकत तक कैसे रसाई हो सकती है जो एक दूर के शहर और कदीम ज़माने में जो वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ। इसलिए इस वाक़े की हकीकत का कैसे पता चल सकता है जिस पर 400 बरस की तवील मुद्दत और दूर दराज के मकाम पर गुजर चुकी है। और सूरत हाल ये हो, 1400 बरस तकरीबन हो गए हैं, और सूरत हाल यह हो कि इस वाक़े के बारे में तासुब की राह इख्तियार की गई हो, जिसकी बिना पर उसके बारे में कसरत से मुतज़ाद और मुख्तलिफ रवायात मौजूद। इसलिए ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी सही हकीकत का हरगिज़ पता नहीं चल सकता, और जब हकीकत का पता नहीं चलाया जा सकता तो फिर हर मुसलमान के साथ जहाँ तक मुमकिन हो हुस्न ज़न रखना चाहिए। और जहाँ तक उनके रहमतुल्लाह अलैह, बाद लोग कहते हैं यजीद को रहमतुल्लाह कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते मोहतरम, उनके रहमतुल्लाह कहने का ताल्लुक़ है तो ये जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है। इमाम इब्न कसीर, हाफिज़ इब्न कसीर ने भी ये बात कही है, बल्कि वो तो हर नमाज के कौल, हर नमाज के में जो दुआ पढ़ी जाती है कि अल्लाह मोमिन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा, ज़ाहिर है उसमें भी वो शामिल और दाखिल है, क्योंकि यजीद मोमिन थे, इसमें कोई शक नहीं। और जो उनके ईमान में शक करे वो खुद बेईमान है, वो खुद काफिर है। जब आम मुसलमानों के मोमिनों के बारे में कोई कहे ये बगैर दलील बगैर सबूत के काफिर है, तो वो खुद काफिर हो जाता है। चे जाए कि वो तो मुजाहिद इस्लाम थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें वो रुतबा व मकाम दिया था कि उनके घोड़े के जो क्या कहते हैं धूल हैं, उड़े वो जो गुबार हैं, आजकल के बड़े बड़े मुफ्ती अल्लामे जो बैठ करके गालियां देते हैं, वाइज और ये क्या कहते हैं मुफ्ती बैठ करके जो चीखते हैं हज़रत इब्न मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से बकवास करते हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत फरमाए। उनके घोड़े के, यजीद इब्न मुआविया के जो मैदान जिहाद में उनके घोड़े के जो धूल थे या उनके घोड़े के नथुने में जो धूल जाते थे, ये उस गुबार के बराबर भी नहीं है। इनकी क्या हैसियत है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मुख्तसरन मैं आप हजरात की खिदमत में ये बात रखना चाहता हूँ कि इमाम गज़ाली का जो फतवा है इब्न खल्लकान और फ़ियातुल अवान जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 465 के अंदर मौजूद है, आप इसको पढ़ लें, देखें और अपने अपने ईमान की फिक्र करें। 1400 बरस पहले जो
वाक़या गुजर चुका, आप उसके बारे में बैठ कर के अपने ईमान को ज़ाया क्यों कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इस दुनिया के अंदर दो शख्सियतें बड़ी मजलूम हैं, जिनको अल्लाह ने माफ़ कर दिया होगा लेकिन बंदों ने उसे माफ़ नहीं किया। एक मजलूम हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बेचारे हैं, जिनका नाम लेकर के लोगों ने वो नौटंकियाँ की हुई हैं और वो नाटकबाजियाँ कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे की गिरेबानों पे हाथ डाले हुए हैं, अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात, लेकिन हैं अहले बिदअत व शिर्क में डूबे हुए हैं। तो ये हैं बेचारे जो इसका ताल्लुक़ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से बज़ाहिर नाम है बस। और एक दूसरा मजलूम शख्स है, मुझे आमिर उस्मानी रहमहुल्लाह की वो इबारत याद आती है तजल्ली देवबंद में, जो उन्होंने कहा था कि दुनिया का सबसे मजलूम तरीन शख्स यजीद है, जिसे अल्लाह ने तो माफ़ कर दिया लेकिन उसके बाद इन बंदों ने माफ़ नहीं किया। तो आप अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए आला हजरत लोग, और आप अपने आक़िबत की फिक्र कीजिए। यजीद इब्ने मुआविया रहमहुल्लाह को अल्लाह तबारक तआला उनसे निपट लेगा, वो जैसे थे कैसे थे। और जहाँ तक हजरत हुसैन, जाहिर है कि एक सहाबी रसूल और एक ताबई में बहुत फ़र्क है। एक सहाबी के बेटे हैं और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनका रुतबा, उनका मकाम, उनको दोनों को कंपेयर कोई नहीं कर सकता। बहरहाल उनका रुतबा अलग है, इनका रुतबा अलग है। खामखा आप जो है इन बनु उमय्या की दुश्मनी में आप अहले बैत का सहारा न लें, ये क़यामत के दिन ये सब कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला हमें अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। ऐ अल्लाह हमें हक़ को हक़ दिखला और उसकी इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फरमा, और बातिल को बातिल दिखाकर अल्लाह उसे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।